Good morning, my dear brothers and sisters. As you all know, myself, Dr. Priyank Trivedi, and as doing duty in the COVID MICU, medicine ICU, even though I am per se pediatrician, daily learning one medical points, and after doing so much duty, I came to know that some topics are that which are must to know for each medical student and each medical fraternity, irrespective of the department. And one of the topic is stroke. Stroke management is, I think, that is something which is must be known by each and every medical person, because it is highly asked questions by the relatives or the society members that what is the prognosis, what is the further, what I have to do, which institute or which hospital I have to refer, I have to go take my beloved one to take this. So I am not here discussing the very high-fi points, which very detailed discussion, and the person who are MD in the medicine are much more ahead of my knowledge. So I am just taking the crisp points from the Nielsen, Harishan, and from the neuro books, which I think must to know by each and every medical person. So starting with the stroke management, any person which come to the in the clinic which having the weakness, hemiparesis or weakness, first of all differential diagnosis come to the stroke, because the brain is affected, then only the corticospinal must be have affected. So the first DD should be there in old age patient with the hemiparesis, with the hemi weakness, or the maybe aphasia there is. First DD come to the ischemic stroke, and the second one is a hemorrhagic stroke. So the CT first, what all the medical persons do is the CT scans to rule out the hemorrhagic stroke. So if the blood is there, it nearly rule out that it is hemorrhagic, and the management should go toward the titration of the BP and all. But if the blood is not present, then what to next do is the we have to go for the MRI, because the ischemic area is not detected by the CT even after 48 hours sometimes. So what is the persons do if the person is affording for the MRI? What are routinely done is the stroke protocol MRI, which nearly costs the 8,000 rupees, in which they are doing all the T1 T2 weighted images, and diffusion weighted images, and even the ADC images, which are very helpful in the stroke, which I will tell you later. But empirically, if the person is not affording for MRI, and what person having the weakness which are the more than 18 years, and which is highly suspected of the ischemic stroke, if not contraindicated for the thrombolysis, what the protocol says that you should go for the thrombolysis. And what is the contraindication is that person must be of more than 18 years of age, platelet count must be more than 1 lakh, BP must be less than 185 by 100, even on drugs, and no history of the bleeding. So हम उसको thrombolysis कर रहे हैं, तो उसका BP बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो hemorrhagic stroke precipitate होगा, प्लेटलेट मोर देन 1 लाख होना चाहिए, नहीं तो वो अग्रेसिव ब्लीडिंग होगा, सर्जरी इन लास्ट 21 डेज में नहीं होगा, नहीं तो वो सर्जिकल साइट पे थ्रोम्बोलिसिस की वजह से हीमेटोमा और एक्सटेंसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है, और कहीं से भी ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए. ये 4 मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है. फर्दर भी बहुत सारे हैं रिलेटिव में, वो तो डिटेल स्टडी में है, लेकिन ये 4 मस्ट टू नो फॉर ईच एंड एवरी वॉट एवर द मस्ट टू नो, ओनली दैट आर द फैक्ट्स आई एम टेलिंग यू. सो ये 4 अगर नहीं है तो हम थ्रोम्बोलिसिस पे तक तरफ जा सकते हैं. थ्रोम्बोलिसिस हम किससे करते हैं? अल्टीप्लेस से. वो डोज है 0.9 mg/kg. यू मस्ट बी नोइंग दैट ईच एंड एवरी dose is titrated, or every drug is on mg/kg in the pediatric patient, but in adults we generally give the empirical, considering the approximately 60 kg weight. But some are the drugs that which require the very precise dose, and one of them is alteplase. सो अगर आप थ्रोम्बोलिसिस कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट वेट पे हम 0.9 mg/kg पे थ्रोम्बोलिसिस करते हैं. उसका 10% IV स्टेट में देते हैं, और बाकी का 90% उसको इन्फ्यूजन पम्प से ओवर 1 आवर देते हैं.
बराबर है। तो ये तो हुई बात, तो हम कैसे कौन सी ड्रग देते हैं, कैसे थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, और उसका एक कॉम्प्लिकेशन है कि वो हाई रिस्क ऑफ पोस्ट हेमरेजिक ब्लीड है, और ये अल्टीप्लेस गवर्नमेंट सेटअप में फ्री में नहीं अवेलेबल है, उसका कॉस्ट नियरली 60,000 है। सो ये भी एक पॉइंट टू कंसिडरिंग है। और वो मैंने बोला था कि इमेज कौन कौन से होते हैं, तो T1 और T2 वेटेड इमेज के अलावा जो डिफ्यूजन वेटेड इमेज है, अगर उसमें हाइपोडेंसिटी दिखती है तो वो इन्फाक्ट सजेस्ट करता है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि वो एक्यूट इन्फेक्शन नहीं सजेस्ट करता है और एक्यूट इश्चेमिया नहीं सजेस्ट करता है। इवन ओल्ड इन्फाक्ट अप टू 3 मंथ वो भी हाइपोडेंसिटी दिखाएगा डिफ्यूजन वेटेड इमेज में। तो उससे अपग्रेडेशन का एमआरआई चाहिए तो वो एडीसी इमेज में दिखता है। एडीसी इमेज में अगर हाइपोडेंसिटी है तो दैट मीन्स द इन्फेक्शन इज रिसेंट एंड इट इज इश्चेमिया ऑफ नियरली 24 आवर। तो अगर इसमें भी हाइपोडेंसिटी है विच इज सीन इन डिफ्यूजन वेटेड इमेज, और वही सेम हाइपोडेंसिटी सेम एरिया पे एडीसी इमेज में है, तो वो रिसेंट स्ट्रोक डिटेक्ट करता है, सजेस्ट करता है, तो हमको थ्रोम्बोलिसिस करना चाहिए। व्हाट इज़ द एडवांस मैनेजमेंट वेयर द न्यूरो इमेजिंग फैसिलिटी के साथ साथ इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो क्या सजेस्ट करता है, व्हाट इज़ द एडवांस प्रोटोकॉल दैट डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के साथ हम परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग भी करते हैं। परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग बेसिकली क्या डिटेक्ट करता है, अगर कोई इश्चेमिया एरिया है उसके बाद रिलेटिवली एरिया ऑफ द परफ्यूजन बढ़ जाएगा, उसको हम पेनम्ब्रा भी बोलते हैं। ये वायबल एरिया है। वायबल एरिया मतलब ये अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ है, ये सराउंडिंग द एरिया ऑफ इन्फेक्शन एरिया है, और विच आर सब्जेक्ट टू इनफैक्ट इन फर्दर इफ़ नॉट गेटिंग डन इंटरवेंशन। सो वो पेनम्ब्रा एरिया अगर है उसमें दिखता है तो हम एमआर एंजियो करते हैं। उसमें अगर जो क्लोट साइट जो वेसल पे क्लोट है वो एक्सेसिबल है बाय इंटरवेंशन, तो हम एंडोवास्कुलरी क्लोट रिट्राइवल करना चाहिए, क्लोट रिमूवल करना चाहिए। अगर वो नॉन एक्सेसिबल है, अगर वर्टिब्रल आर्टरी के विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस है, तो हमको गो फॉर आईवी थ्रोम्बोलिसिस। तो बेसिकली ऑल come to the nearly any person having the डेफिसिट वीकनेस विच इज़ मोर देन 18 ईयर। सिटी में हमने ब्लड रूल आउट कर दिया, नहीं है, हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं है, और स्ट्रोक प्रोटोकॉल का एमआरआई इमेजेस हमने प्लेट लिए, उसमें डिफ्यूजन वेटेड इमेज और एडीसी इमेज में हाइपोडेंस एरिया है। परफ्यूजन इमेज में हमने देखा कि साल्वेजेबल एरिया है फॉर थ्रोम्बोलिसिस, और उसमें हमने देखा कि एमआर एंजियो में एक्सेसिबल है, तो हम एंडोवास्कुलरी क्लोट को रिट्राइवल करते हैं, और वो जो वेसल है एमआर एंजियो में दिखे कि जहाँ पे क्लोट है वो नॉट एक्सेसिबल है, तो आईवी थ्रू अल्टीप्लेट हमको उसका थ्रोम्बोलिसिस करना चाहिए। ये तो हुई थोड़ी हाई फाई लेवल की बात। हमारे देश में आप ही जानते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में और या सारे स्टेट में आर नॉट एडवांस इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल। सो व्हाट बेसिकली वी कैन गो इज अप टू द आईवी थ्रोम्बोलिसिस। हमको सीटी स्कैन, एमआरआई प्लेट, और उसमें अगर थ्रोम्बोलिसिस का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम मल्टीप्लेस 0.9 mg पर kg पे दे के जो भी वो पेशेंट अफोर्डेबल हो तो फॉर द 60,000 रुपीज़ वी कैन स्टार्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड विच इज़ बेटर बाय दिस थ्रोम्बोलिसिस। उसके बाद हमको पोस्ट स्ट्रोक मैनेजमेंट में क्या क्या कंटिन्यू रखना चाहिए, तो उसका है एक एस्पिरिन 150 mg पे हम कंटिन्यू रखते हैं, और इसमें बहुत सारे स्टडी हुए हैं कि अगर डबल एंटीप्लेटलेट हमको कंटिन्यू रखने चाहिए कि नहीं। तो उसमें एक तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में उसका रोल है, और स्ट्रोक ऑलरेडी अगर पेशेंट को स्ट्रोक आता है विच इज़ ऑलरेडी ऑन इकोस्प्रिन प्रोफाइलैक्सिस, सो हमको डबल प्रोफाइलैक्सिस इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल से कंटिन्यू रखना चाहिए। डेफिनेटली एडल्ट पेशेंट में रूटीन एंटीकोगुलेशन का कोई रोल नहीं है, नॉट रिकमेंडेड। इनिशियली 3 to 5 डेज में अगर उसको स्ट्रोक हुआ है तो चांसेस है कि ब्रेन के आसपास अगर एरिया में इडीमा बहुत ज़्यादा होगा तो 100 ml विच इज़ नियरली 1 pint IV TDS हमको 3 to 5 डेज तक देना चाहिए, और स्टेटिन्स फॉर द कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रखने के लिए फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। अगर उसमें हाइपोग्लाइसेमिया है और पेशेंट को हाइपोथर्मिया है तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ वेरी बैड प्रोग्नोसिस। ये तो बात हुई एडल्ट की। हम चिल्ड्रन में अगर देखें तो मोस्ट कॉमनली कोजेस मे बी इट इज़ नॉट लाइक दैट विथ वेरी कॉमन, और उसको हमको कोज फाइंड आउट करना चाहिए इमीडिएटली। बेसिकली रूटीन में हम CBC प्लेटलेट 2D को ECG कराते हैं क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़ है कि नहीं चेक करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एक HbS वैल्यू देखते
देखते हैं कि अगर वो सिकल आर वेरी कॉमनली लीड टू द इश्केमिक स्ट्रोक, और उसके अलावा मोया डिजीज़ है, और उसके अलावा वेरी लेस कॉमनली कोसिस भी है माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, जो मेलास हम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी विद लैक्टिक एसिडोसिस सिंड्रोम, मेलास, और मर्फ माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी विद रेगुलर रेड फाइबर्स आर वेरी कॉमनली एसोसिएटेड, तो उसके लिए हमको सीरम लैक्टेट करना चाहिए। उसके अलावा वास्कुलर डिजीज़ है तो वो भी कोज कर सकते हैं, उसके लिए एएनए और एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए करना चाहिए, और इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑल्सो कैन लीड टू द कोज। सो टैंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और गैस क्रोमेटोन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके अलावा एमोनिया और लैक्टेट लेवल चेक करना चाहिए फॉर द फाइंड आउट ऑफ द एग्जैक्ट कोज। और इसमें जो रोल है बेसिकली इसमें जो थ्रोम्बोलिसिस का रोल है वो अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है, बिकॉज द पीडियाट्रिक स्ट्रोक आर नॉट मच कॉमन। एक स्टडी हुआ था ट्रीटमेंट ऑफ इश्केमिक पीडियाट्रिक स्ट्रोक, उसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया में ऐसे तरह अडल्ट की तरह ही 4.5 से लेस देन 4.5 आवर में अगर कोई पेशेंट आता है विथ इश्केमिक स्ट्रोक अल्टीप्लेस का रोल फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज बट वो स्टडी को बीच में ही स्टॉप कर देना पड़ा बिकॉज द पेशेंट नॉट इफ सफिशिएंट डेटा वाज कलेक्टेड। इसके अलावा एक स्ट्रोक मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद फॉर द एग्जैक्ट मैनेजमेंट देयर इज अ रोल ऑफ कैरोटिड एंड एट्रेक्टोमी इफ द पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी, और इफ अनफिट दैट कैरोटिड स्टंटिंग is has written for the places where the international neurologist is available. So basically this is the stroke management which is I think must to know for each and every medical person, even though it is not very common in the pediatric patient, but in the adult patient it is very common, and each and every facts must to be know by the persons, at least for the medical students. Thank you.